Hello students, today our topic of discussion is state and prove Gauss theorem or Gauss law. So Gauss law is a universal law and its statement is the total electric flux, that is phi, through any closed surface S is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by it, that is phi, which is electric flux, is equal to E dot ds. जैसे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस. ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस मीन्स एरिया, एंड दिस थिंग indicates the closed surface and this is the integral, and which means the closed line integral of a surface S. So phi is equal to closed line integral E dot ds is equal to क्या over epsilon naught और 1 over epsilon naught times the charge. मीन्स के जो टोटल फ्लक्स है बेटा वो 1 over epsilon naught टाइम्स, यानी कि 1 over epsilon naught गुणा किसके, चार्ज के. ठीक है. सो वेयर द Q इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज और टोटल चार्ज एंड epsilon naught इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम. जो रोल बेटा म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड में प्ले करता है वही रोल यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्ले करता है. ठीक है. सो परमिटिविटी का यहाँ पे वैसा ही मीनिंग है जैसे म्यू नॉट का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है. नेक्स्ट इज़ प्रूफ. सो बेटा इसके प्रूफ के लिए यहाँ आप देख सकते हो, एक हमने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू विच इज़ एट अ पॉइंट O, and P is the point of observation where we want to find the electric field intensity, and we have drawn a Gaussian surface around point P which is indicated by the red dots, and this r cap is the unit vector in the direction of r, and this is the ds is the area element or area vector, and in the direction of ds n cap is the unit vector. So you know this is charge plus Q, so the electric field are originated from plus charge, so this is the electric field direction, that is E. So consider an isolated point charge plus Q placed at a point O. P is the point of observation at a distance r around which a Gaussian surface is drawn. So EFI stand for electric field intensity. Electric field intensity at P due to plus Q charges, ये हमने पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, that is E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square into r cap, where r cap is a unit vector in the direction of r. Now consider a small area vector, that is ds, on the surface. So the electric flux through this small area vector or small element is equal to d phi. क्योंकि small area vector लिया तो हमने फ्लक्स भी यहाँ से d phi यानी कि small flux लेनी है. So d phi equal to E dot ds. So the value of d phi will become, if we put the value of E from here, that is 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square r cap dot ds. अब बेटा ये जो आर कैप और डी एस हैं ये दोनों ही आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनको हम अलग से रखेंगे, बाकी चीज़ें जितनी भी कांस्टेंट है इनको हम यहाँ रख देंगे. तो यहाँ आएगा 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square r cap dot ds. अब आपको पता है कि जो डी एस की डायरेक्शन में हमने बेटा एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया है उसका नाम है एन कैप. सो एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, डी एस वैक्टर ओवर डी एस. तो डी एस वैक्टर की वैल्यू क्या बनने वाली है, डी एस वैक्टर की वैल्यू बनेगी एन कैप इंटू डी एस. तो इस जगह पे हम बेटा डी एस वैक्टर की वैल्यू भर देंगे एन कैप इंटू डी एस. सो नाउ वी विल फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो इट विल बिकम फाई इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और डी फाई की वैल्यू बेटा क्या है 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square एज इट इज़. और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, अगर यहाँ हम क्लोज लाइन इंटीग्रल लगाएंगे तो आ जाएगा r डॉट r कैप डॉट n कैप इंटू डी एस, क्योंकि ये हमने डी एस वैक्टर की वैल्यू भरी थी. सो बेटा आर कैप डॉट एन कैप क्या होता है 1, क्योंकि ये है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स. तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. ठीक है. तो इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square phi एज इट इज है. ये तो बन गया 1 और यहाँ बन गया सिर्फ डी एस. तो डी एस क्या आएगा बेटा, डी एस मीन्स क्लोज लाइन इंटीग्रल डी एस. इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बच्चे 4πr²। तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू बनने वाली है वो क्या बन जाएगी 1/4πε0 Q/r²। ये तो एज इट इज रह गया, और इसकी वैल्यू बन गई हमारे पास 4πr²। तो यहाँ से r² से बेटा r² कट जाएगा, 4π से 4π कट गया, है ना। तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई Q/ε0। तो फाई है क्या बेसिकली, फाई जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल E.ds विच इज़ गॉस लॉ। ठीक है, आगे इसमें हम एक केस करेंगे बेटा। देखो अगर ये बोलता है कि इफ़ Q = 0, अगर चार्ज जीरो होगा, अगर चार्ज जीरो होगा तो आपने देखा यहाँ से फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। तो अगर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है तो अगर Q 0 है तो फाई की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। केस नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई सरफेस मान लो ऐसे है, इसके ऊपर एक चार्ज प्लस Q है, एक चार्ज माइनस Q है, तो भी जो टोटल फ्लक्स ऐसे सरफेस की बनेगी वो बनेगी 0। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज क्या आएगा -Q + Q = 0। तो अगर टोटल चार्ज 0 है तो जैसे हमने पहले में डिस्कस किया, चार्ज बेटा 0 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द गॉस लॉ। थैंक यू बेटा।